Hi guys, so welcome to Prep IS. This is a 3-month free crash course for UPSC prelims. Actually we started this course on 17th March and it will continue till 20th June. On 27th June you have your prelims exam. So in this course we are basically comprehensively covering the UPSC CSC prelims syllabus. Then along with this we have high quality mock test also. So I request everyone to attend this test because this is going to test the preparation of candidates before the final examination. Then in this course basically if you see that the faculties are highly qualified, they have cleared mains, they have faced also, they have faced interview, they have a high quality and 5-year experience of teaching. So basically they know what to study in prelims and what not to study in the prelims, so you can take help of these faculties. Then along with this there is a coverage of static portion as well as dynamic portion for CSE prelims exam, because everyone knows that dynamic current affairs portion is again very important for prelims examination, right? Then study material notes are continuously being uploaded on the Telegram channel of Prep IS. You can find the link in the description of the video. यू कैन फाइंड द लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। आप वहां से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारे नोट्स, डेली क्विज वहां पे आप लोगों की आ रही है। देन वी हैव ऑन एवरी संडे देयर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, the lectures which faculties take. Then on weekdays, then at weekends we have a doubt session where students can use the Google form. Students can use Google form attached in the description of the video and can share their doubts from there. Then we have CSET included also. CSET is also included in this crash course, so you guys can attend CSET classes as well, right? So today we are going to start our lecture number 16, financial institutions, right? Then what's the date today? Lecture 16, we have financial institution. So when I talk about financial institution, when financial institution को हम three categories हैं, we can divide in the three categories financial institutions की. सबसे पहले we have a banks, then we have development financial institutions, then we have non banking financial institution या इनको NBFCs भी बोलते हैं, non banking financial कंपनीज भी बोला जाता है, कॉर्पोरेशंस भी बोला जाता है। तो बेस्ड ऑन द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दिस इज कैटेगराइज्ड एज कॉर्पोरेशन और कंपनी, राइट? सो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेड अप कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, ये सब अब अभी हम आगे आने वाले इसी लेक्चर में आगे ये सब हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो जब हम बैंक्स की बात करते हैं ना, बैंक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स, cooperative banks and regional rural banks, while development financial institutions are those institutions which are related to some specific area, right? When I talk about NABARD, you will find NABARD in agriculture, rural sector, right? While SIDBI is for MSMEs. So these development financial institutions are assigned the responsibility of a development of a particular sector, right? Then comes the non-banking financial institutions. These are insurance companies, mutual funds. Basically जब हम NBFCs पढ़ेंगे, हम चार टाइप के पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे MFI, that is micro financial institutions. सेकंड हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स. देन थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें हेज फंड्स. थर्ड पढ़ेंगे हम हेज फंड्स. एंड फोर्थ होगा हमारा इंश्योरेंस कंपनीज, राइट? इंश्योरेंस कंपनीज. So these four type of NBFCs we are going to study. So let's begin now. सबसे पहले बैंक्स की बात करेंगे. से बेसिकली बैंक्स आर दोस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी वो आर्थिक संस्थान होती हैं ये जो निम्नलिखित कार्यों को करती हैं. जैसे सबसे पहला आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. वो हम लोगों से डिपॉजिट लेती हैं. हम वहां पे अपना फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, हम वहां पे अपना टर्म डिपॉजिट्स खुलवा सकते हैं. बेसिकली टर्म डिपॉजिट्स और एफडी सेम होती हैं. देन आपका करंट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, हम करंट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं. Then we have saving accounts as well, right? Saving account as well. So these type of services जो financial institution provide करता है वो banks category में आते हैं. Then
इज नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, मतलब जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो तब अपने पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकता है। ये अनदर फंक्शन है जो बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज द लैंडिंग फंक्शन। लैंडिंग मतलब जो हमको वो उधार देता है, डेप्ट देता है, जैसे लोन के फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, राइट, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, लोन्स के फॉर्म में, तो हमें लैंडिंग प्रोवाइड करता है ना, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फिर बैंक बोलते हैं। सो दीज थ्री आर द कोर फंक्शन ऑफ बैंक। कभी भी बैंक की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे ना, तो आपको सिंपली बोलना है बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सेकंड इज प्रोविजन ऑफ डिमांड विड्रॉ, मतलब आप अपने अकाउंट से, जो आपने अकाउंट बना रखे हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, इनमें आप अपने डिमांड के आधार पे कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। देन वी हैव लैंडिंग, लैंडिंग इज लोन, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में जो लैंडिंग दी जाती है उस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। देन कम्स योर टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा जो मेजर क्लासिफिकेशन रहेगा ना, वो रहेगा शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। This is the major classification. Now when I talk about the scheduled banks ना, वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 1934 की सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनको शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। जो बैंक्स आपके आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होते हैं, दे आर नोन एज द शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। और जो इसके तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं बट फिर भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर नोन एज योर दिस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, राइट। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक? सबसे पहले पेड अप कैपिटल शुड बी एटलीस्ट ₹5 करोड़। पेड अप कैपिटल कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। अब पहले ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कैपिटल्स बताता हूँ, कैपिटल क्या होती है। देखो, ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम शेयर कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी, मतलब जो उसने अपना जो टोटल शेयर्स हैं वो कितना वैल्यू है उसकी। मतलब इफ आई से देयर इज अ बैंक एबीसी और जो इसके पूरे टोटल शेयर्स की वैल्यू है वो है 10 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए। मतलब ये इन 10 करोड़ रुपए के शेयर्स अपने पास रख सकता है, या इसके शेयर्स की टोटल वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, तो दैट विल बी द ऑथराइज कैपिटल, मतलब जो उसकी कैपिटल को परमिशन मिली हुई है जितने अमाउंट से वो अपने आप को ऑपरेट कर सकता है, दैट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। देन नेक्स्ट कम्स द इशूड कैपिटल। ये सारी ना टाइप्स ऑफ कैपिटल अभी हमारे पूरे लेक्चर में काम आएंगी, इसलिए मैंने इनको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है, ठीक है। देन कम्स योर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जैसे ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, दिस इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल एंड दिस इज योर इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करने के लिए दे रखा है, राइट। सो टोटल वैल्यू कितनी कंपनी की? 10 करोड़। उसने 3 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में निकाल दिए, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स और आम जनता इसमें इन्वेस्ट कर सके। सो दैट विल बी द इशूड कैपिटल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेन इशूड कैपिटल का वो वाला पार्ट होता है जो एक्चुअल में सब्सक्राइब किया गया होता है, जो एक्चुअल में खरीदा गया होता है इन्वेस्टर्स के द्वारा या फिर पब्लिक के द्वारा, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड और परचेज्ड बाय द पब्लिक, राइट। सो दिस इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली परचेज्ड बाय और सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, राइट। देन कम्स योर कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। कॉल्ड अप कैपिटल होता है पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच इज डिमांडेड बाय कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सेम, दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल and this is your called up capital, right। so subscribed capital का वो वाला हिस्सा या वो वाला पार्ट जो कंपनी स्पेसिफिकली अपने इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर से डिमांड करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, उसके अपने शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसके शेयर्स को खरीद के रखते हैं अपने पास और रिटर्न में उसको पैसा देते हैं, और कंपनी से क्या मिलते हैं? उसके शेयर्स मिलते हैं, राइट। शेयर्स पे इसको प्रॉफिट वगैरह जितना भी होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको डिविडेंड मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है? डिविडेंड मिलता रहता है।
राइट। तो इसी तरीके से कॉल्ड अप कैपिटल वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जो स्पेसिफिकली कंपनी के द्वारा डिमांड किया गया है अपने इन्वेस्टर्स से या फिर अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है। Then next comes your paid up capital. Paid up capital is money which is actually paid by the shareholders. यानी कॉल्ड अप कैपिटल है जो कंपनी ने डिमांड करा कि हम अपने शेयर होल्डर से इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं और उन शेयर होल्डर से एक्चुअली कितना पैसा इन्वेस्ट करा गया कंपनी में, दैट विल बी द पेड अप कैपिटल, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, राइट। सो इसको आप ऐसे समझो, this is your authorized capital, this is your issued capital, right, this is your issued capital, then this becomes, this is your this is your issued capital, subscribed capital, called up capital, and next is your paid up capital, PC, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ दिस सर्कमसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ रिलेशंस बताए हैं तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइडियली आप देखो, दिस पेड अप कैपिटल शुड बी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, बिकॉज अगर आइडियली सिचुएशन में कंपनी जितना डिमांड कर रही है शेयर होल्डर्स उतना दे देंगे उनको, तो दिस 5 शुड बी इक्वल टू 4, right, and this 4 should be equal to 3 because subscribed capital क्या है, part of issued capital which is actually purchased by the public, so this should be equal to 4, 4 should be equal to 3 because again this money is again asked by public and from public and shareholders ना। दिस मनीज आई मेंशनड इट हियर, इन्वेस्टर्स या पब्लिक से जो भी इशूड कैपिटल डिमांड करी गई है, सब्सक्राइब कैपिटल जो एक्चुअली में सब्सक्राइब करी गई है, कॉल्ड अप कैपिटल is again money which is company from investors or shareholders. So ideally subscribed capital should be equal to called capital and this called capital should be equal to paid up capital. That means this subscribed capital should also be equal to paid up capital, right? And this issued capital, याद ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इश्यूड कैपिटल कैन ऑल्सो बी लार्जर देन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये पॉसिबिलिटीज चलती हैं हमेशा, ठीक है। ये कंडीशन भी फिक्स नहीं है कोई भी, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे इश्यूड कैपिटल हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से बराबर या उससे ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इश्यूड कैपिटल में पब्लिक भी है ना, इश्यूड कैपिटल में पब्लिक भी है ना। और सब्सक्राइब कैपिटल अगर हम कंडीशन माने कि 100% सब्सक्राइब नहीं किया गया है, इनफैक्ट शेयर होल्डर्स टर्मिनोलॉजी इज नॉट फॉर इश्यूड कैपिटल, ठीक है। तो अगर 100% सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो एनी हाउ दिस इश्यूड कैपिटल विल बी मोर देन सब्सक्राइब कैपिटल। कभी भी इसका वाइस वर्सा तो नहीं होगा ना। मेरा कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है, कभी सब्सक्राइब कैपिटल कभी इश्यूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है। खुद सोचो इस चीज को। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में उतारा हो। तो कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीपीसीएस 2016। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज आप लोग समझ के रखो, ठीक है। कभी भी इशूड कैपिटल हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगा, या इसे ऐसे बोल लो सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। सो जो बैंक की कंडीशन रहेंगी ना, पेड अप कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए। व्हाट इज पेड अप कैपिटल नाउ, टेल मी। मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इट शुड बी एटलीस्ट, यानी शेयर होल्डर्स का कम से कम 5 करोड़ का यहाँ पे पैसा होना चाहिए। वाई, रीजन में कमेंट करके बताओ आप लोग क्यों एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए क्यों होना चाहिए, ठीक है। इसका और कम क्यों नहीं करा। तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द मनी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द बैंक, ठीक है। आप हिंट दे रहा हूं, रिलेट टू सम ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, relate with accountability, relate with better management, ठीक है।
सो यहाँ से आप लोग इसकी इन 4 पॉइंट से इस पॉइंट को रिलेट करो। देन कम्स इट्स ऑपरेशन, मतलब बैंक का जितना भी आपका ऑपरेशंस होगा इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपोजिटर्स। दिस इज अगेन अ कंडीशन ऑफ शेड्यूल 2। ये मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो आपके आरबीआई एक्ट के तहत शेड्यूल सेकंड है ना आरबीआई एक्ट 1934 में, उसमें से कुछ कंडीशंस मैंने आपको यहाँ मेंशन करी है जो अभी तक एग्जाम से पूछी गई है। सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। देन अगेन ऑल टाइप ऑफ बैंक्स, जो हमने तीनों टाइप के बैंक्स पढ़े, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज, they can also be registered under second schedule and they can also become the scheduled banks, they can also become the scheduled banks, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने आप लोगों को समझा दिया है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। Then comes your non-scheduled banks. This is again very important. Non-scheduled banks, these are not registered under the second schedule of RBI Act of RBI Act 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, राइट। सो नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। नाउ अब मैंने आपको एक चीज बताई कि बैंक कितनी कैटेगरी के होते हैं हमारे, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज। तो अब हम ये तीनों कैटेगरी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ से। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कमर्शियल बैंक डिफरेंशिएट विद कोऑपरेटिव बैंक, सो जो कमर्शियल बैंक का जो डिफरेंस होता है ना वो प्रॉफिट होता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है। और कोऑपरेटिव बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। यानी वित्तीय, क्या बोलेंगे इसको, वित्तीय समावेश, ठीक है, वित्तीय समावेश। देन कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड सोशल सेक्टर, मतलब वाई हाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिकॉज जो क्रेडिट मिलता है ना इस पे वो आपको लोअर रेट्स पे मिलता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर वित्तीय समावेश के लिए होता है और ये आपके मुनाफे के लिए होता है, प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन दीज कमर्शियल बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनका पंजीकृत होता है, पंजीकृत होते हैं ये। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। और जो ये एक्ट होते हैं ना, ये जो विधेयक होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं। इसका मतलब है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना ये वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो वैल्यू एडिड सर्विसेज मतलब आपका क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल कार्ड्स, राइट। देन आपका हो गया इंटरनेशनल कार्ड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया। देन आपका बेसिकली जो एयरपोर्ट लाउंज कार्ड्स वगैरह होते हैं ना जो एसबीआई वगैरह निकालता रहता है एयरपोर्ट लाउंज वगैरह के लिए। देन आपका चेक सर्विस हो गया, ठीक है। ये सब होती हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब जो स्टैंडर्ड बैंकिंग सर्विसेज होती है ना, स्टैंडर्ड बैंकिंग सर्विस जो होती हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके उनको मार्केट में लेके आना, ठीक है। सो जो इसका मैनेजमेंट होता है ना, इसका मैनेजमेंट हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, मतलब देयर आर सम डायरेक्टर्स और वो डायरेक्टर्स मिलके एक अपना बोर्ड बनाते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक का है, देन आपका एचडीएफसी बैंक का भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, देन आपका इवन एसबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे को यहाँ से एक चीज बताना, जो इंद्रधनुष योजना आई थी बैंक रिफॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ठीक है। इसका काम मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ, इस ट्रिपल बी का फंक्शन क्या था। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इंद्रधनुष योजना के तहत बैंक रिफॉर्म्स के लिए जो योजना आई थी उसके तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये इसका काम क्या होता है ट्रिपल बी का, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं इनके लॉ, ठीक है। देन कम्स योर लिमिटेड
जो ये वैल्यू एडिड सर्विसेज है ना, यहाँ लिमिटेड वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक दे विल प्रोवाइड चेक्स फैसिलिटी, दे आल्सो माइट प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड, बट अदर वैल्यू एडिड सर्विसेज लाइक इंटरनेशनल कार्ड्स, एयरपोर्ट लाउंज कार्ड्स, ये सब नहीं प्रोवाइड करते हैं ये सब, ठीक है। जैसे आपका एसबीआई है, एसबीआई का वैल्यू एडिड कार्ड आपने देखा होगा, आईआरसीटीसी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके एक आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड लॉन्च करा है, रेलवे कार्ड, ठीक है। जिसमें क्या है इसका सिस्टम, अगर आपके पास ये कार्ड है तो अगर आपका स्लीपर का भी टिकट है ना, अगर आपका स्लीपर का भी टिकट है तो आप एसी लाउंज में जाके बैठ सकते हो। देन इसके साथ साथ आपको टिकट बुक करने पे कुछ 2.5% या 5%, 7% का भी डिस्काउंट मिलता है। सो दीज आर नथिंग बट द वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव बैंक बिकॉज इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन छोटा होता है, इनका फाइनेंशियल साइज भी छोटा होता है, तो इनके पास इतना स्कोप नहीं होता कि वो ये सब चीजें, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, बिकॉज इनका जो लोअर, बिकॉज जो इनका क्रेडिट दिया जाता है ना वो हमेशा लोअर रेट्स पे दिया जाता है, तो इनका क्या है, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, ऊपर से ये जिन सेक्टर्स में दे रहे हैं ना लोन, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इस वजह से इनकी जो वैल्यू एडिड सर्विसेज रहती है वो हमेशा कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में हमेशा कम रहती है, ठीक है। अब जो इसका मैनेजमेंट है ना, इसमें डेमोक्रेटिक मैनर में चलता है, मतलब जो भी इस कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर्स होंगे ना, इसका मेंबर कोई भी बन सकता है, एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, क्योंकि ये तो एक टाइप की सोसाइटी है ना, तो एनीवन कैन बिकम द मेंबर, और ये मेंबर मिलके फिर मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करते हैं, इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट के लिए कुछ अपने 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 बीच में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल रहता है वो रहता है 1 मेंबर = 1 वोट, हर एक सदस्य के पास एक वोट रहेगा, ठीक है। देन जो इसके कमर्शियल बैंक्स है ना, जो इसका रेगुलेटर रहेगा वो आरबीआई रहेगा, और जो कोऑपरेटिव बैंक के जो इनके रेगुलेटर्स रहेंगे वो रहेंगे आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड। जो आरबीआई का काम होगा कि जो भी इन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा जो भी बैंकिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनकी निगरानी करना, यानी उनको रेगुलेट करना। स्टेट के द्वारा होगा जो मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हुआ है उसको देखना। देन नाबार्ड होगा जो भी कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक जो भी एग्रीकल्चर या फिर रूरल सेक्टर में जो भी लोन्स दे रहा है उसका रीफाइनेंसिंग करना, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है कमर्शियल बैंक का वो हमेशा यूनिफाइड होता है, ठीक है। यूनिफाइड का मतलब होता है एक सिंगल हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ मेरे को, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। एक मतलब एक पूरा नेशनल हेडक्वार्टर होगा, वहीं से सब चीजें मेंटेन होंगी, ठीक है। वही जो अपने डिसीजन लेंगे वही एसबीआई की ब्रांचेस को फॉलो करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर 3 टायर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब टायर 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, दे हैव अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देन टायर 2 पे डिस्ट्रिक्ट पे होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं इसको। और देन टायर 3 आपका विलेज लेवल पे होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। PSCS is Primary Agriculture Credit Society. While this is regulator is RBI, structure is unified. Here the regulator is RBI, state government and NABARD. While this structure is 3 tiered, tier 1 is at the state level, that is state cooperative bank. Tier 2 is district level, that is district or central cooperative bank. Tier 3 is at village level, that is primary agriculture credit society. ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कोऑपरेटिव बैंक्स ना, इनको दो आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी आएगी आपकी रूरल कैटेगरी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, दूसरी आएगी आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ना, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जो आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ना, ठीक है, तो जब हम नेचुरली बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, वी ऑलवेज मीन दैट शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक हमेशा आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही देता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही देता है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया इसने कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नाउ व्हेन आई कम टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए अलग से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट
बैंक। देन वी हैव अर्बन लेवल पे वी हैव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आप लोगों के घर के पास भी कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक 100% होगा, ठीक है। देन कम्स योर, आप होम लोन्स वगैरह यहाँ से नहीं ले सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग, आपको होम लोन्स नहीं मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि होम लोन्स हमेशा 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए दिए जाते हैं, और ये हमेशा आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने के लिए वी हैव अ सेपरेट बैंक्स नोन एज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स अंडर कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी, राइट। देन अब आप मेरे को बताओ प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा, कोऑपरेटिव का ज्यादा होगा या कमर्शियल का ज्यादा होगा? कमेंट करके बताओ मेरे को, और क्यों एंड व्हाई, ठीक है। देन हमने जो तीसरी कैटेगरी पढ़ी थी, पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी कमर्शियल बैंक्स, सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड थर्ड कैटेगरी इज योर आरआरबीज, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। जब मैंने टॉक अबाउट दिस रीजनल रूरल बैंक्स ना, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मतलब ये कमर्शियल बैंक से एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कंसेशनल क्रेडिट दिया जाता है स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल सेक्टर, राइट। इफ यू आर ऑपरेटिंग एनी एग्रीकल्चर वर्क, आपको एग्रीकल्चर के लिए कोई लोन चाहिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई लोन चाहिए, तो आप आरआरबी के थ्रू ले सकते हो। ये अर्बन एरियाज में लोन नहीं देता है, ठीक है। तो कंसेशनल क्रेडिट, हालांकि अब तो ये वाला कंसेप्ट है ना डाइल्यूट हो गया है, अब ये कंसेप्ट आपका डाइल्यूट हो गया है। मैं आगे ना एक अमेंडमेंट एक्ट आया था आरआरबी का, वो भी अभी डिस्कस करूंगा, तब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आरआरबी खुला था ना भारत में, वो प्रथमा बैंक खुला था मुरादाबाद यूपी में। मुरादाबाद जो यूपी के उनको पता होगा, आप लोग मेरे को यहाँ से कमेंट करके बताओ। यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम में मुरादाबाद कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। देन इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है इन सभी बैंकों का, वो आरआरबी एक्ट 1976 एक्ट के तहत किया जाता है, ठीक है। देन जो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, ये मेनी टाइम्स पूछा गया है इस चीज को। यूपीएससी 2008 में पूछा गया था, देन 2013 में भी पूछा गया था, देन उसके बाद में नहीं पूछा गया, देन 2000 शायद 2004 या 5 में पूछा गया था, ये 2004 या 5 में भी पूछा गया था। और स्टेट सर्विसेज में तो बहुत बार पूछा गया है, स्टेट सर्विसेज में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट होता है ना, वो ज्वाइंटली किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% रहता है, और स्पॉन्सरिंग पब्लिक बैंक का मतलब जैसे कि एसबीआई हो गया आपका, देन आपका हो गया नाम कैनरा बैंक हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। नाउ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट बैंक भी शेयर होल्डर बैंक बन सकते हैं? तो वेट करो, अभी इसमें 2015-16 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अब हम आगे वो डिस्कस करेंगे, तब आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों के 100% दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट बैंक भी इसका शेयर होल्डिंग बैंक हो सकता है या नहीं हो सकता है, स्पॉन्सर्ड बैंक हो सकता है या नहीं हो सकता। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है स्पॉन्सरिंग पब्लिक बैंक, यानी इनिशियल लेवल पे जब ये एक्ट बना था या जो कंसेप्ट आरआरबी का आया था, उसमें प्राइवेट बैंक अलाउ नहीं थे। याद रखना, प्राइवेट बैंक अलाउ नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करा है स्पॉन्सरिंग पब्लिक बैंक। तो यानी इनिशियल लेवल पे, यानी जब ये स्कीम जब इनिशिएट हुई थी आरआरबी की, तब प्राइवेट बैंक अलाउ नहीं थे आपके, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आरआरबी जो थी आपकी, आरआरबी जब ओरिजिनली आरआरबी सिर्फ 3 जोग्राफिकल लोकेशन में अपनी ब्रांचेस खोल सकती थी, सिर्फ 3 जोग्राफिकल लोकेशंस पे, बट अब आरआरबी अपनी ब्रांचेस कितनी भी लोकेशंस पे खोल सकती हैं, ठीक है। तो 1975 में जब ये बना था, जब ये स्कीम आई थी आपकी, तो फर्स्ट आरआरबी, ठीक है, 1987 में 196 आरआरबीज थे, यानी इन 12 साल में 12 इयर्स में लगभग 190 प्लस आरआरबीज एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब ये स्कीम आई होगी तो विच 5 ईयर प्लान वाज देयर? अगर मैं आपसे पूछूं
कौन से फाइनेंशियल ईयर में, इन विच फाइनेंशियल ईयर, in which 5 year plan, in which 5 year plan RRBs were established, RRBs were established। आप मेरे को जवाब देके बताओ इसका। ऑप्शन है 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, आप लोग मेरे को जवाब दिखा दो। इन विच 5 year plan RRBs were established, राइट। दिस क्वेश्चन इज रिसेंटली बीइंग आरबीआई ग्रेड बी में ये सवाल अभी पूछा गया था आप लोगों से। अगर किसी ने दिया होगा तो आपको ये सवाल वहां मिल जाएगा, कौन से साल में, कौन से 5 year प्लान में आरआरबीस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो 1987 में 196 आरआरबीस बने, 2005 में 196 आरआरबीस ही थे, यानी कोई भी नया आरआरबी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। 2005 से इन 196 आरआरबीस का मर्जर स्टार्ट कर दिया ताकि इनका कैपिटल इंक्रीज हो सके, यानी इनका जो साइज है, फाइनेंशियल साइज जो है इनका वो इंक्रीज हो सके, फाइनेंशियल साइज आपका बढ़ सके। ठीक है, 2017-18 में जाके ये मतलब 2017-18 में लगभग ये 60 बचे हैं, 60 आरआरबीज हैं, ये आपस में सारे मर्ज हो गए हैं क्योंकि इनका ऑपरेशन कैपिटल अब बढ़ गया है। अभी ज्यादा लोन दे सकते हैं, ज्यादा एरिया में लोन दे सकते हैं, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। ठीक है, देन 2014 में एक एक्ट आया था, आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, ऑथराइज कैपिटल को, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब यूपीएससी में तो नहीं पर बैंकिंग एग्जाम से पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दी गई। ठीक है, शेयर्स ऑफ आरआरबीस, यानी जो आपका ऑथराइज कैपिटल, यानी अब जो बैंक्स हैं, यानी जो आरआरबीस हैं, अब वो 2000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते हैं, 2000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ आरआरबीस कैन बी ऑफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। अब इनिशियली जब मैंने आपको दोबारा से ये चीज बताई थी कि इनिशियली प्राइवेट बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक नहीं हो सकते हैं, सिर्फ पब्लिक बैंक ही स्पॉन्सर्ड बैंक हो सकते हैं, बट अभी आरआरबीस के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को भी दिया जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसबीज है उनका शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कम हो सकता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसबी का कंबाइंड शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो ये अथॉरिटी रहेगी, यानी जो नेचर रहेगा आरआरबी का, जो आरआरबी का नेचर रहेगा वो हमेशा गवर्नमेंट रहेगा, यानी दे आर गवर्नमेंट इसकी ऑनर रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर तो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होती है, 51% या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज द पीएसबी। अब पीएसबी गवर्नमेंट बैंक हो गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ही, तो जब इन दोनों का कंबाइंड शेयर होल्डिंग आरआरबी की 51% होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, तो नेचर क्या हो गया आरआरबी का, गवर्नमेंट हो गया या नहीं हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में आ गए या नहीं आ गए, ये आ गए ना। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना ये हमेशा उसमें होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा दे रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा, ये मुझे योजना से मिला था अभी। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टोटल लोन दिया गया है ना, उससे 65% कमर्शियल बैंक से दिया गया है, कोऑपरेटिव बैंक से 25% दिया गया है और आरआरबी से 10% दिया गया है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब इन दोनों का काम ही आपका एग्रीकल्चर आरआरबी का काम, सॉरी, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में लोन देना है, तो फिर भी कमर्शियल बैंक से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों गया हुआ है। ठीक है, सो द ओनली आंसर हियर इज ड्यू टू ऑपरेशनल साइज। कहने का मतलब यह है कि जो इनका ऑपरेशनल कैपिटल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीस। ठीक है, क्लियर है, राइट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स, जो फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश हुआ था ना, ये थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड में आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे भी मुझे कुछ पीसीएस में सवाल मिले हैं, इस पे सवाल मिले हैं, जैसे आरएएस में पूछा गया था इस पे सवाल, इवन आपका महाराष्ट्र कह रहा हूँ, सॉरी, एमपी पीसीएस में भी इस पे 2015 में सवाल पूछा गया था। सो नॉर्मली मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि अगर कोई बैंकिंग का स्टूडेंट भी देख रहा हो ना तो उसको भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, ये यूपीएससी में हालांकि
2013 के बाद से नहीं पूछा गया है, बट यूपीएससी यू डोंट नो, आई डोंट नो, दे कैन आस्क एनीथिंग, तो हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ बैंक से हम बात करेंगे। जो फर्स्ट बैंक है वो एस्टेब्लिश्ड इंडिया में कब हुआ था? 1720 में हुआ था। बैंक का नाम था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इट वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। देन 1770 में दूसरा बैंक खुला जिसका नाम पड़ा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देन व्हाट वाज द फर्स्ट बैंक व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियंस? 1881 में जो फर्स्ट बैंक जो इंडियंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था वो था आपका अवध बैंक, अवध बैंक। अवध का आपको नाम पता होगा, पहले अवध बोलते थे इसको, ठीक है। दिस इज अवध यानी लखनऊ। तो करेंटली आज के टाइम पे आपका लखनऊ है। और कमर्शियल बैंक, ठीक है, 1898 में पीएनबी के नाम से पीएनबी के नाम से जानने लगे इसको हम, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। 1898 में पंजाब नेशनल बैंक खुला। देन फर्स्ट बैंक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सब मैंने नोट्स में भी ऐड कर दिया है। 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा, ये वाला पॉइंट नहीं आपको नोट्स में मिलेगा, तो ये आप लोग अपने नोट्स में अभी से ऐड कर लो। फर्स्ट बैंक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था वो 1806 में खोला गया था, उसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, ठीक है। इसको लेटर प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। 1840 में ये पंजाब बैंक, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे खोला इन्होंने। देन 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास खोला। These three banks later combined in 1921 to form Imperial Bank of India, जो 1955 में आपका एसबीआई बना जाके, जो 1955 में एसबीआई बना। तो ये तीन बैंक थे आपके 1806 में, बैंक ऑफ कैलकाटा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। सो इसको लेटरली इसको बोला गया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, यानी बंगाल बॉम्बे प्लस बंगाल मिलकर आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो 1955 में आपका एसबीआई के नाम से जाने लगा, ठीक है। देन 1959 में इसके कुछ एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई खुले, जैसे कि बीकानेर, त्रावणकोर, पटियाला, मैसूर, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। नाउ आप लोगों का कमेंट करके मेरे को बताओ अभी करंटली एसबीआई के कितने एसोसिएट बैंक्स हैं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि 2018 में एसबीआई बैंक के एसोसिएट बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो माय क्वेश्चन इज करंटली एसबीआई के कितने एसोसिएट बैंक्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में हैं, ठीक है। देन भारतीय महिला बैंक आपको पता होना चाहिए। भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना हुई थी वो 2013 में हुई थी, ठीक है। नाम से मत जाना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में फंसाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। भारतीय महिला बैंक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को लोन दिया जाएगा, यहाँ पे लोन दोनों मैन और वुमेन दोनों को दिया जाता है। हालांकि प्रेफरेंस एंड परसेंटेज ऑफ लोन्स वो हमेशा वुमेन की ही ज्यादा होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में प्रीलिम्स में फंसाया जाता है, लोग नाम देख के समझेंगे कि महिला बैंक है तो महिलाओं को ही दिया जाता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को दिया जाता है। प्रेफरेंस एंड परसेंटेज ऑफ लोन हमेशा वुमेन के प्रति ज्यादा होती है, ठीक है। देन कम्स योर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जब हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करेंगे तो जो सबसे पूर्व राष्ट्रीयकरण हुआ था ना इन बैंकों का, वो हुआ था 1969 में हुआ था। नहीं, जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1969 में हुआ था। इसमें कुछ 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को जिनके डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे अधिक थे उनको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। ये कौन से 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स के, जिसको पता है वो कमेंट कर दो, अदरवाइज इस लेक्चर में तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैंने नोट्स में ऐड कर दिया उनको, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कौन से 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स थे। बट अगेन अगर आपको कोई भी पीसीएस देना है या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम देना है ना, देन यू शुड नो दीज व्हाट आर द, मतलब ये कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं आपके, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स कौन से थे जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे अधिक थे, वो आपके नेशनलाइज किए गए हैं, ठीक है। ये नोट्स में मैंने ऐड कर दिए हैं कौन से 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स थे, आप लोग वहां रेफर कर लेना। मैं इस लेक्चर में 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे वो कौन से बैंक्स थे और इस मेजर वर्ड की क्या डेफिनेशन है, देन आपको पता होना चाहिए यहाँ से
वो बैंक्स मेजर की डेफिनेशन है जिनके डिपॉजिट्स आपके 50 करोड़ या उससे अधिक होते हैं। जिनके पास डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे अधिक थे वो सभी नेशनलाइज किए गए थे। ठीक है। देन दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो 1980 में हुआ था, जिसमें 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था जिनके डिपॉजिट 200 करोड़ या उससे ज्यादा थे। क्या? जिनके डिपॉजिट 200 करोड़ या उनसे ज्यादा थे उनको 1980 में नेशनलाइज किया गया था। ठीक है। देन कम्स पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग 51% या उससे अधिक होता है। ठीक है। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो सारे पीएसबीज बैंक होते हैं। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, करंटली कितने हमारे पीएसबीज हैं? ठीक है। पीएसबीज कितने हैं करंटली हमारे? करंटली कुछ मर्जर हुआ है, जैसे विजया बैंक देना बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस तरीके से आप लोग मेरे को बताओ करंटली कितने पीएसबीज हमारी इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था, कमेंट करके बताना है कि एसबीआई के कितने करंटली एसोसिएट बैंक्स हैं। ठीक है। देन कम्स योर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो मैं आपको टॉपिक देता हूं ना कि इनको सर्च करके बताओ, देन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली जब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन यूपीएससी के नेचर को कुछ नहीं पता, कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, 2 मिनट लेंगे, गूगल कर लो, मिल जाएगा आंसर। और अगर गूगल नहीं करना है, आलस आ रहा है, तो नोट्स का वेट कर लो, नोट्स में मैंने ये सारी चीजें लिख दी है। ठीक है। देन कम्स योर नेक्स्ट कैटेगरी इज डीएफआई, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये मतलब बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स को आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, पर जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपको फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्निकली दोनों तरीके से सहायता करेगा। ठीक है। ये कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इनका बेसिकली काम होता है रीफाइनेंस करना उन सभी बैंक को जो इनके रिलेटेड सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड करता हो। ठीक है। जैसे अगर एसबीआई ने किसी एग्रीकल्चर के लिए कोई लोन दिया, तो जो इस एग्रीकल्चर का जो लोन होगा ना, इसको रीफाइनेंस कौन करेगा? आपका नाबार्ड करेगा। कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। ठीक है। अगर एसबीआई ने कोई एमएसएमई पर्पस के लिए लोन दिया है, तो इसको रीफाइनेंसिंग कौन करेगा? इसका रीफाइनेंसिंग करेगा सिडबी। ठीक है। सो ये नाबार्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये कभी भी आपको पब्लिक को डायरेक्टली लोन नहीं देंगे, ये हमेशा रीफाइनेंसिंग करते हैं बैंक्स को, जो बैंक्स लोन देते हैं इनके रिलेटेड सेक्टर में, ये याद रखना। ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हेन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, जब पब्लिक से, आम जनता से जब डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनके पास रीफाइनेंस करने के लिए पैसा आता कहां से है? ठीक है। कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा ना, तो वो देखते हैं अब हम, ये पैसा आता कहां से है। ठीक है। देखो ये पूरा प्रोसेस चलता है, जो डेवलपमेंट बैंक होता है ना, जो भी बैंक इस डेवलपमेंट पर्टिकुलर बैंक के रिलेटेड सेक्टर में लोन दे रहा है, उसकी गारंटी उस बैंक को डेवलपमेंट बैंक से प्रोवाइड की जाती है। देन वो बैंक आगे फर्म ए को, जो मतलब जो कस्टमर है उसको लोन प्रोवाइड करता है, और जो कंपनी है बेसिकली वो डेवलपमेंट बैंक को कमीशन देती है। ठीक है। सो पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या आ गया? कमीशन। दूसरा आ गया आपका गवर्नमेंट, सरकार से भी इनको पैसा मिलता है। जैसे आप देखोगे कुछ ना बजट में हमेशा नाबार्ड के लिए कुछ ना कुछ बजट तय होता है। ठीक है। ऐसी सिडबी के लिए होता है, राइट। तो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, आरबीआई से भी पैसा मिलता है, और ये लोग अपनी कंपनी के जितने भी शेयर्स वगैरह हैं या जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको भी जनरल पब्लिक में ये इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में उतार के रखते हैं। ठीक है। जैसे आप नाबार्ड के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिडबी वाले में कर सकते हो, इस तरीके से। तो 4 सोर्सेज हो गए, कमीशन, गवर्नमेंट, आरबीआई एंड सेल ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। देन ये हमेशा मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लोन्स मतलब ये बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, और बैंक्स इन आगे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है। कभी भी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं बनेगा। ठीक है। देन रीफाइनेंसिंग इज द मेन, इनका मेन काम होता है। देन क्रेडिट एनहेंसमेंट,
क्रेडिट एनहेंसमेंट मतलब होता है द गारंटी अगेंस्ट, क्रेडिट एनहेंसमेंट का मतलब होता है जो लोन्स बैंक कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है ना, उस लोन के लिए ये जो डेवलपमेंट बैंक है उन बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड करते हैं, और इस गारंटी की वजह से बैंक्स बैंक्स बिना किसी टेंशन के क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बिना किसी टेंशन के क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है आगे कस्टमर्स को। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट एनहेंसमेंट, मतलब क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा देना, क्रेडिट का साइज बढ़ा देना, क्वांटिटी क्रेडिट बढ़ा देना, क्योंकि जब गारंटी उनको अपने लोन का अगेंस्ट मिल रही है तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट को देना चाहेंगे। ठीक है, देन जो दूसरी कंपनी के शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनको सब्सक्राइब करना है, उनको खरीदना। ठीक है, नाउ एक टर्म दूसरा, पहला फंक्शन हो गया मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, रीफाइनेंसिंग, क्रेडिट एनहेंसमेंट, देन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, देन फिफ्थ फंक्शन है इसका अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है आपका, जैसे किसी फर्म ए ने अपने आईपीओस निकाले, क्या निकाले, आईपीओस। आईपीओस क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। सो ये नई कंपनी है, इसने ये अभी मार्केट में आई है, अब इसके अच्छे खासे कस्टमर हो गए हैं, तो इसने मार्केट में आईपीओस निकाले हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपको मिलेगा, कल्याण ज्वेलर्स ने अपना आईपीओ निकाला है, कल्याण ज्वेलर्स ने अपना आईपीओ निकाला है। ठीक है, बर्गर किंग ने अपना आईपीओ निकाला है। तो ये डेवलपमेंट बैंक क्या करेंगे, सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे। अगर उनका बिजनेस मॉडल इनको अच्छा लग रहा है ना, तो इनको ये अंडरराइटिंग करेंगे, इनको मतलब ये बोलेंगे कि आपके जितने शेयर्स या आईपीओस पब्लिक के द्वारा शेयर नहीं किए जाएंगे, उसका कुछ प्रतिशत हम आपसे गारंटी खरीद लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज बर्गर किंग ने आपका, ये चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जैसे सपोज सिडबी है, सिडबी ने क्या करा, बैंक को गारंटी प्रोवाइड करी। बैंक ने फर्म ए को क्या दिया, लोन दिया, फर्म ए ने इसको क्या दिया, कमीशन दिया। ठीक है, कमीशन दिया। अब यहाँ से सिडबी ने इसको एक और काम करा, सिडबी ने क्या करा, जो इस फर्म ए के आईपीओ थे ना, उसमें अंडरराइटिंग करी और बोला कि जितने भी आपके शेयर्स आईपीओ सेल नहीं होंगे उसमें 30% या उससे कम, मतलब मैक्सिमम 30% शेयर्स हम लोग खरीद लेंगे, मतलब सिडबी खरीद लेगा। ठीक है, तो फर्म ए ने अगर 10 करोड़ शेयर्स निकाले, सपोज 10 करोड़ की शेयर वैल्यू है टोटल। ठीक है, तो इसने इसके क्या करे, इसने 30% यानी 30% ऑफ ये इसने निकाले आपके 1 करोड़ के 10 शेयर निकाले, 1 करोड़ के 10 शेयर निकाले। ठीक है, तो इसका 30% कितना हो गया, लगभग 3 शेयर, यानी 3 शेयर मतलब 3 करोड़ रुपए। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो सही कर लेना उसको। ठीक है, 3 शेयर मतलब 3 करोड़ रुपए। तो सिडबी ने इस फर्म को क्या बोला कि अगर जितने भी शेयर्स आपके नहीं बिकेंगे, सपोज आपके 10 शेयर्स में से सिर्फ कुछ ही शेयर्स बिके, मतलब सिर्फ आपके 2 शेयर बिके। ठीक है, तो अभी कितने शेयर बाकी हैं, 8 शेयर बाकी है ना, तो इस 8 शेयर में से हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 3 शेयर हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज अंडरराइटिंग, और इस अंडरराइटिंग के बदले में जो फर्म ए होगी इसको अगेन एक अंडरराइटिंग कमीशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। समझ में आ गया अंडरराइटिंग का। अंडरराइटिंग सिंपल मतलब होता है, अगर किसी कंपनी ने अपने आईपीओ या शेयर्स मार्केट में उतारे हैं तो डेवलपमेंट बैंक उसको एक गारंटी देता है कि 30% या उससे कम, या 40% या उससे कम, या 50% या उससे कम, एनीथिंग। ठीक है, जो डेवलपमेंट बैंक का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, उतने शेयर्स हम गारंटी आपसे खरीद लेंगे, अगर वो नहीं बिके तो उतने हम खरीद लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से पॉइंट। ठीक है, नाउ इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है इंडस्ट्री कैटेगरी, दूसरा फॉरेन ट्रेड, तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, चौथा हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, तो जो आपके इंडस्ट्री सेक्टर है ना, इसमें आते हैं आपके आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आरआईसीआई, सिडबी, मुद्रा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली बैंकिंग स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। यूपीएससी वाले भी इनको देख लेना एक बार, यूपीएससी वाले भी इसको देख लेना। मैंने ये सब नोट्स में ऐड कर दिए हैं और 2-4 में यहाँ डिस्कस भी करूंगा, सारे तो नहीं करूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। आईसीआईसी और आईडीबीआई करंटली बैंक्स हैं, इनको ये इनिशियली एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे गए थे, पर लेटर इनको अराउंड 1994 के आसपास इनको बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। देन फॉरेन ट्रेड के लिए वी हैव एक्सिम बैंक,
Exim Bank is export import bank. Then agriculture के लिए we have NABARD, housing के लिए we have NHB. NHB is National Housing Bank. ठीक है, इनके बारे में इंडिविजुअली अब डिस्कस कर लेते हैं. देखो IFCI क्या होता है आपका. IFCI इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये आपका 1948 में सबसे पहले बना था और ये इंडिया का फर्स्ट DFI है. मतलब DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. देन ICICI इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इसको 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एज अ DFI लॉन्च किया था. ठीक है. ये प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश किया गया था. मतलब इसकी जो शेयर होल्डिंग थी उसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम था. ठीक है, 51% से आपका कम था. एंड इट वाज द ओनली DFI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करता था. ठीक है. 1994 में ICICI बैंक को इसकी सब्सिडरी की तरह लॉन्च किया गया और 2002 में ये ICICI DFI और बैंक मिलके कंबाइंड आपका एक कंबाइंड यूनिवर्सल बैंक बन गया. क्या बन गया? यूनिवर्सल बैंक बन गया. और ये पहला यूनिवर्सल बैंक बना था. फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया वाज ICICI. यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया होता है जिसके अंदर सारी सर्विसेज, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फ्रॉम टेक्निकल असिस्टेंस टू फाइनेंशियल असिस्टेंस. मतलब वहां पे DFI का भी काम होगा एक ही जगह, वहां पे आपका बैंक का भी काम होगा, वहीं आपका NBFC का भी काम करेगा. यानी मतलब एक ही यूनिट, एक ही ग्रुप ऑफ सारे काम करेगी. दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल बैंकिंग. या इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल सुपरमार्केट. जैसे आप लोग कभी बिग बाजार वगैरह जाते होंगे, बिग बाजार चले गए, ठीक है, इजी डे चले गए, तो यहाँ क्या है, आपको एक ही जगह सारे आइटम्स मिल जाते हैं. ऐसी ICICI हमारा पहला यूनिवर्सल बैंक मिलेगा जहां पे आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से एक ही जगह मिल जाएगी. ठीक है. देन कम्स योर SIDBI. SIDBI इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. ये ऐसा IDBI का सब्सिडरी की तरह 1990 में सेटअप किया गया था. लेटर इसको IDBI को ऑटोनॉमी मिल गई थी. इनिशियली दोबारा बता रहा हूँ, SIDBI को IDBI की सब्सिडियरी के तरह 1990 में एस्टेब्लिश करा गया था. क्वेश्चन इज बाय गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर अपने शेयर होल्डिंग में क्यों नहीं स्टार्ट करा? क्योंकि IDBI MSME के क्षेत्र में सबसे एक्सपर्ट बॉडी थी. इसलिए गवर्नमेंट ने SIDBI को IDBI का सब्सिडरी की तरह लॉन्च करा. हालांकि इसको बाद में ऑटोनॉमी दे दी गई. ठीक है. नाउ ये MSME के क्षेत्र में एपेक्स डेवलपमेंटल बॉडी है. ठीक है. देन इसके बाद है आपका मुद्रा. इसका हेडक्वार्टर बताना कहां पर है मेरे को. ठीक है. देन इसका चेयरमैन कौन है करंटली. ठीक है. देन मुद्रा की बात जब हम करेंगे, माइक्रो यूनिट्स एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी. ठीक है. इसमें माइक्रो का मतलब है इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख. मतलब वो सभी बैंक्स वो सभी कंपनीज जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का है वो आते हैं माइक्रो की डेफिनेशन में. ठीक है. देन कम्स योर 2015 में SIDBI की सब्सिडरी की तरह लॉन्च किया गया था मुद्रा को. वी आर टॉकिंग अबाउट मुद्रा हेयर. ठीक है. देन ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. देन इट इज रजिस्टर्ड विद RBI एज NBFC. ठीक है. एंड इट इज आल्सो रेगुलेटर ऑफ अदर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. MFIs मतलब माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. मुद्रा योजना क्या है? देखो भाई, मुद्रा योजना में 3 टाइप के लोन ले सकते हैं. सबसे पहला आता है शिशु लोन. शिशु लोन मतलब जो 50,000 तक के लोन है. किशोर जो 5 लाख तक के लोन है. तरुण जो 10 लाख तक के लोन है. ठीक है. तरुण जो आपके 10 लाख तक के लोन है. ठीक है. ये आप लोग याद रखना. ठीक. देन कम्स योर एक्सिम बैंक. एक्सिम बैंक को जनवरी 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. ये एपेक्स बैंक है जो फॉरेन ट्रेड फाइनेंस के रिस्पेक्ट में आपका लोन देते हैं. ठीक है. आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा PSL कैटेगरी में आता है या नहीं आता? PSL इज पब्लिक सेक्टर लैंडिंग.
ठीक है, इस कैटेगरी में आता है या नहीं होता। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर को मिस मत करना। हालांकि इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं 2012-13 के बाद से, बट सरप्राइज यूपीएससी का पार्ट है, तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप मत करना। मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा फॉर्मेट डिजाइन करा है इस चैप्टर का। ठीक है, लेक्चर्स देख लो, नोट्स पढ़ लो, इसके अलावा आपको बैंकिंग चैप्टर में कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। थैंक यू।